بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ یہ اشعار جو ہیں میر تقی میر کے ہیں اور یہ درست ہیں۔ اے اور ڈی والے جو ہیں زمرے وہ درست اشعار ہیں، اور یہ کن کے ہیں؟ تو میر تقی میر کے ہیں۔ میر تقی میر کے پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ہائکو کل کتنے مصروں اور سالموں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 3 مصروں اور 17 سالموں پر، 4 مصروں اور 15 سالموں پر، 8 مصروں اور 12 سالموں پر، یا پھر 7 مصروں اور 14 سالموں پر؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، 3 مصروں اور 17 سالموں پر مشتمل ہوتی ہے ہائکو۔ یاد رکھیے گا، ہائکو جو ہے کل 3 مصروں اور 17 سالموں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہائکو جو ہے یہ جاپان کی ایک قدیم صنف سخن ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ تصانیف کے اعتبار سے مصنفین کا نام جوڑیے۔ تصانیف کے اعتبار سے مصنفین کا نام جوڑنا ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس طرح کے سوال جو ہے اکثر بنتے ہیں، اور آج کل جو ہے ایسے ہی پیٹرن پہ جو ہے سوالات بن رہے ہیں۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ہو جائے گا ناول، فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ناول ہو جائے گا، گودان منشی پریم چند کا، اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہو جائے گا۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے علی گڑھ میں، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو نویڈا میں ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش جو ہے 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی، اور وفات جو ہے 1936 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ تو 1874۔ فردوس بری 1899 عیسوی منظر عام پر آیا۔ گودان جو ہے 1936 عیسوی منظر عام پر آیا ہے۔ آگ کا دریا جو ہے 1959 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 4 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، بی اور سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، جنت سے یہاں کیوں کہ جاوے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ ولی دکنی صاحب کا شعر ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ولی دکنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1668 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1720 عیسوی کو اورنگ آباد میں۔
अहमदाबाद में, सॉरी, औरंगाबाद में पैदाइश है 1668 ईस्वी को, और अहमदाबाद में जो है 1720 ईस्वी की वफ़ात है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीम ही ने हमें इंसान बनाया है। तालीम हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसान ने अपने शानदार तहज़ीबी सफ़र में जो कुछ सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाएं। यह इबारत किस किताब की है? ख्वाब बाकी हैं, वरूद मसऊद, मज़ामीन सर सैयद या फिर ज़हाक। जी साथियों, तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी ड्रामा ज़हाक। मोहम्मद हुसैन का शामिल नसाब ड्रामा ज़हाक का यह इबारत है। याद रखिएगा, ड्रामा ज़हाक जो है 6 मनाज़िर पर मुश्तमिल है, और ड्रामा ज़हाक में जो है इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी बयान की गई है ड्रामा ज़हाक में। इसके मशहूर किरदार में ज़हाक जो फ़ौजी होता है, उसके अलावा नौशाबा का ज़िक्र आया है। नौशाबा याद रखिएगा, नौशाबा एक रक्कासा होती है। फ़रीदों क्या होता है? फ़रीदों ये शायर होता है। बूढ़ा वो एक जज रहता है। इसके अलावा जो है कैदी व जुर्जान है। बाकी सब जो हैं ये रक्कासा है, और सिपाही वगैरह जो हैं इसके किरदार हैं ड्रामा ज़हाक के। ड्रामा ज़हाक जो है असरी अदब में 1977 में हुई है। 1977 ईस्वी में जो है ड्रामा ज़हाक पहली बार असरी अदब में जो है शाये हुई। और याद रखिएगा, इसके ठीक 3 साल बाद 1980 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाये हुई है ड्रामा ज़हाक। इसी के ताल्लुक़ से एक और सवाल का जवाब बताइएगा कि किसने सियासी तमसील करार दिया है ज़हाक को? ड्रामा ज़हाक को किसने सियासी तमसील करार दिया है? जी, तो ज्ञानचंद जैन ने। याद रखिएगा, ज्ञानचंद जैन ने ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानचंद जैन ने जो है ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1900 जो है 23 ईस्वी को बिजनौर में हुई, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। मसनूइयों के एतबार से मुसन्निफ़ीन के नाम शामिल कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। फूलबन इब्न नशाती की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की मसनवी, और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। सज्जाद हैदर यल्दरम की वफ़ात जो है 1943 ईस्वी में हुई है लखनऊ में। पतरस बुखारी की वफ़ात जो है 1958 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, पतरस बुखारी की वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई है। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात जो है 1987 ईस्वी को पटना में हुई। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वफ़ात जो है 2018 ईस्वी को कराची में। अब बात करते हैं इनके पैदाइश के बारे में। सज्जाद हैदर यल्दरम की तो पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को जो है बिजनौर में, और वफ़ात 1943 ईस्वी को लखनऊ में। पतरस बुखारी की पैदाइश 1898 ईस्वी को पेशावर में हुई है, वफ़ात 1958। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई, और वफ़ात जो है
1987 को पटना में। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी को टोंक राजस्थान में हुई और वफ़ात जो है 2018 ईस्वी को कराची में। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। बे, पे और फे तीनों दुलबी बंदिशें आवाज़ें हैं। इन तीनों में सोती फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? गेशा, सोत-पात, हलकोमी जौफ या फिर अनफी जौफ? जी सवाल नंबर 8 का सही जवाब बता दीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सोत-तात। सोत-तात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बे, पे और फे ये तीनों जो हैं दुलबी बंदिशें आवाज़ें हैं। इन तीनों में जो है सोती फ़र्क जो है सोत-तात से पैदा होता है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी साथियों, तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ़े सयाह रुख पे परेशान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, बरसों में हुए हैं चाक गरीबा किए हुए। ये अशआर जो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के हैं। गालिब के जो हैं ये अशआर हैं। चलिए जी अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ज़ेल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफ़ीन से जोड़िए। जी साथियों, तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। नई तनकीद जमील जालिबी की किताब है। अक्स और आईने ये किताब जो है एहतशाम हुसैन की है। अदबी तनकीद मोहम्मद हसन की किताब है। अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी की किताब है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1904 ईस्वी को खलीलाबाद में हुई है और वफ़ात जो है 1988 ईस्वी को कराची में। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई है और वफ़ात जो है 2010 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। जमील जालिबी की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा 1929 ईस्वी को जो है अलीगढ़ में हुई है और वफ़ात जो है 2019 ईस्वी को कराची में हुई। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में और वफ़ात जो है 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। ठलिया और बदना पानी से भरा हुआ था और वह पीरजन चरखा काटती थी। कुत्ता कूजे के नज़दीक गया, चाहा कि लोटे को उठावे। औरत ने डांटा, लोटा उसके मुंह से छूटा, घड़े पर गिरा, मटका फूटा, बाकी बासन लुट गए, पानी बह चला। यह इबारत किस किताब की है? फसाना जाए, बुस्तानी ख्याल, रानीखेत की या फिर बागो बहार? जी तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी बागो बहार। यह इबारत जो है बागो बहार के किस्सा सरगुज़श्त आज़ाद बख्त से अख़ज़ किया गया है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी निज़ामी बेदरी, फिर मुल्ला वजी, मीर हसन और फिर दयाशंकर नसीम। निज़ामी बेदरी की पैदाइश और वफ़ात जो है अभी दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी मसनवी पदम राव से इनकी पैदाइश और वफ़ात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। निज़ामी बेदरी ने अपनी मसनवी पदम राव को 1421 से
1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखा था। मुल्ला वजही की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1659 ईस्वी को हुई। मीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी को दिल्ली में हुई और वफ़ात 1786 ईस्वी को लखनऊ में। दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात 1845 ईस्वी को हुई। तो मुल्ला वजही की 1566, मीर हसन की 1737 और दयाशंकर नसीम की 1811। तो ये पहला हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। अब कहाँ जाऊँ, करूँ क्या, क्यों राह आगे की लूँ, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कशा मेरा नहीं, बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चाचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल हैं? रानीखेत की बागो बहार, करबल कथा या फिर फसाने अजायब। जी तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी करबल कथा। करबल कथा जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। करबल कथा को फजली ने कब लिखा था? तो 1732-33 में लिखा था। और किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर फजली ने लिखा था। और ये किससे माखूज़ है? तो मुल्ला वाहिद हुसैन काशिफ़ी की रौज़तुश शुहदा से माखूज़ है। और इसमें जो है कितने उन्वान हैं? तो 12। याद रखिए करबल कथा के उन्वान जो है 12 मजलिसों पर मुश्तमिल है। और किसने जो है मुरतब किया? तो मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मिलकर जो है मुरतब किया था। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। दावा दलील का सवाल है। दावा है आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है और दलील है इस नावल में मौजू को इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में पेश किया गया है। जी तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, दावा सही है और दलील भी दुरुस्त है। आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है और इस नावल में मौजू को इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में पेश किया गया है। बिल्कुल। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। झेल में लिखे गए तज़किरों के मुसन्निफ़ीन के नाम जोड़िए। जी सवाल नंबर 15 का सही जवाब बता दीजिएगा। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, तज़किरा हिंदी। मुसैफ़ी ने लिखा था इस तज़किरा को। याद रखिएगा तज़किरा हिंदी को मुसैफ़ी ने लिखा है। निकात शुअरा को मीर तक़ी मीर ने लिखा है। तज़किरा शुअराए उर्दू को मीर हसन साहब ने लिखा है 1737 से 1786 वाले ने। और गुलशन बेखार को मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने लिखा है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। मुसन्निफ़ीन के हिसाब से तसानीफ़ जोड़िए। मुसन्निफ़ीन के हिसाब से तसानीफ़ जोड़ना है यहाँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी तरह के जो है आपके इम्तहान में सवालात बनते हैं। जी साथियों, तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्मत चुगताई का क्या हो जाएगा? इस्मत चुगताई का तो नावल टेढ़ी लकीर 343 1945 याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का क्या हो जाएगा? एक चादर मैली सी 1965 में शाया हुई। शौकत सिद्दीकी का क्या हो जाएगा? तो शौकत सिद्दीकी का हो जाएगा खुदा के बस्ती। और इंतज़ार हुसैन का बस्ती 1980। खुदा की बस्ती मेरे ख़्याल से 1958 ईस्वी में शाया हुई। आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। झेल में से ड्रामा अनारकली के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी साथियों, तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। बाब अव्वल में इश्क बाब अव्वल का इश्क जो है बाब अव्वल जो है पहला इश्क है और मंज़र जो है अव्वल दोम सोम और चहारुम। और बाब दोम जो है रक़्स है, इसका मंज़र अव्वल दोम सोम और चहारुम। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
امتیاز علی تاج نے یہ ڈرامہ جو ہے 1922 عیسوی میں لکھا تھا اور پہلی مرتبہ یہ ڈرامہ جو ہے 1932 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتصاب جو ہے پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ اور 13 مناظر ہیں۔ پہلے باب میں 4، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 5 مناظر ہیں۔ پہلا باب میں ہے عشق، دوسرا میں رقص، تیسرے باب میں موت۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ اچھا، یہاں امتیاز علی کے جو ہے ڈرامے سے اکثر جو ہے سوالات بنتے ہیں، تو یہاں پہ ان کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ قرطبہ کا قاضی بہت ہی مشہور جو ہے ان کا ڈرامہ ہے۔ چیچک کے داغ، کمرہ نمبر، الو کی زبان، امن و سکون، پرتھوی راج، قسمت، پورس، یاسمین، رتناولی، دلہن، جہاں آرا، گونگی جورو، روشے ادا، شیخ برادران، شاہجہاں، حریم قلب، ان کے ابا، سید و سیاد، ورجینا، خوشی صرف کانوں کے لیے، اور چچا چھکن، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ امتیاز علی تاج نے جو ہے لاہور سے ایک رسالہ کہکشاں 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کو لاہور میں ہوئی اور وفات 1970 عیسوی کو لاہور ہی میں قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی۔ چلیے جی سوال نمبر 18 دیکھیے گا۔ پریم چند کے ناولوں کی زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے اپنے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اسرار معابد جو ہے 1903 سے 5 میں جو ہے شائع ہوئی تھی، 1903-5 جو ہے۔ اور بیوہ جو ہے بیوہ یہ ناول جو ہے 1927 عیسوی میں شائع ہوئی۔ میدان عمل جو ہے 1930-32 میں شائع ہوئی، اور گودان جو ہے 1936 عیسوی میں شائع ہوئی ہندی میں، اور اردو میں 1937 عیسوی میں گودان شائع ہوئی جامعہ سے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ درج ذیل میں سے مشتاق احمد یوسفی کے انشائیے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، جنون لطیفہ۔ جنون لطیفہ جو ہے مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں چراغ تلے بہت ہی مشہور ہے، خاکم بدہن، زرگزشت اور آب گم، اس تصانیف جو ہے ان کی مشہور ہیں۔ مضمون جنون لطیفہ جو ہے یہ مجموعہ جو ہے چراغ تلے میں ان کا شامل ہے۔ چراغ تلے ان کا ایک مجموعہ ہے، اسی میں یہ شامل ہے جنون لطیفہ، اور چراغ تلے 1961 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف، اور آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، اشرف بیابانی پہلے آئیں گے۔ اشرف بیابانی کی پیدائش جو ہے 1460 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1529 عیسوی کو۔ محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش جو ہے 1565 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1611 عیسوی کو۔ ملا وجہی کی پیدائش جو ہے ملا وجہی کی پیدائش 1566 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1659 عیسوی کو۔ محمد قطب شاہ کی پیدائش جو ہے ابھی دستیاب نہیں ہے، لیکن جو ہے وجہی کے بعد جو ہے ان کی پیدائش ہے محمد قطب شاہ کی۔ اور وجہی نے جو ہے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔